صدیوں پرانا قصہ ہے کہ بصرہ کے ایک گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے جن کا نام ہمدان، زید اور خلیفہ تھا۔ وہ تینوں بہت گہرے دوست تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے اکٹھے جاتے۔ ان کی دوستی پورے گاؤں میں بہت مشہور تھی۔ جب بھی کوئی ایک دوست مصیبت میں پھنس جاتا تو تینوں دوست ڈٹ کر اس مصیبت کا سامنا کرتے۔ لیکن وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی کبھی وقت کا پہیہ ایسے گھومتا ہے کہ انسان کو ایسے حالات پر کھڑا کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بصرہ میں قحط پڑ گیا اور کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ یہ تینوں دوست غریب تھے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی غربت نے ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں پہلے یہ پورے بصرہ میں بے فکر گھومتے تھے، اب انہیں پریشانیوں نے آن گھیرا۔ جب غربت اور بھوک حد سے بڑھ گئی، یہ تینوں دوست افسردہ حالت میں ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے پہلے مشکل حالات میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اس دفعہ بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ویسے بھی ہم بہت سالوں سے غربت دیکھتے آئے ہیں، اب کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جس سے ہم تینوں دوست بہت جلد امیر ہو جائیں، کیونکہ بصرہ میں ٹھہرنے کا یہ مطلب تھا کہ بھوک انہیں نکل جائے۔ انہوں نے اپنی کچھ جمع پونجی اور سفر کا سامان لیا اور اپنا خواب پورا کرنے کی جستجو لیے ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ طویل تھا یا دور، انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن وہ چلتے جا رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک اجنبی بستی کے اندر جا پہنچے۔ وہ بستی ایک پراسرار جنگل میں گری ہوئی تھی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد وہ یہاں پہ پہنچے تھے۔ اب رات کی تاریکی چھانے لگی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا نے ان کی تھکن میں مزید اضافہ کر دیا۔ خلیفہ نے ایک کپڑے سے ایک عارضی خیمہ تیار کیا۔ دوسرا دوست ہمدان آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی تلاش میں نکل پڑا، جبکہ تیسرا دوست زید سارا سامان خیمے میں رکھ کر کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہمدان جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آیا۔ زید نے لکڑیوں سے آگ جلائی اور کھانا تیار کرنے لگا۔ کھانا تیار ہوا تو تینوں دوستوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں دوست تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سستانے لگے۔ تینوں میں سے ایک بولا، کیا اپنا گاؤں چھوڑ کر ہم نے اچھا فیصلہ کیا؟ جس پر دوسرا دوست کہنے لگا، جب مسافر اپنی منزل کو پانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے قدم نہیں گنتا اور نہ ہی راستے میں آنے والی مصیبتوں سے اپنا سفر روکتا ہے، بس وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ منزل پانے کی لگن مصیبتوں کی وجہ سے اس کا دھیان بھٹکنے نہیں دیتی، اور آخر ایک دن وہ طویل مصیبتوں کے بعد اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ یہ بات سن کر تینوں دوستوں کا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ تینوں دوست تھکن سے چور انہی خیالات میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک انہیں پھنکار کی آواز آئی۔ وہ تینوں دوست ایک دم سے ڈر گئے۔ ہمدان نے کہا، یہ آواز بہت خطرناک لگ رہی ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں ایک بہت بڑا کالا ناگ نظر آیا جو خلیفہ کے پاؤں کے قریب ہی رینگ رہا تھا۔ ناگ اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور خلیفہ کے پاؤں پر ڈسنے ہی والا تھا کہ باقی دونوں دوستوں نے اسے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور خلیفہ ناگ کے ڈسنے سے بال بال بچ گیا۔ چونکہ سانپ کو مارنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ جو لکڑیاں وہ جنگل سے لائے تھے وہ ساری کی ساری جلا چکے تھے، اس لیے وہ وہاں سے باہر بھاگ نکلے۔ بیچارے اپنا سامان بھی نہیں اٹھا سکے کیونکہ خیمے کے اندر تو خطرناک سانپ موجود تھا، نہ ہی وہ جنگل کے اندر رک سکتے تھے۔ جنگل کے اندر رکنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ اپنا سامان لیے بغیر خالی ہاتھ راستے پر چل پڑے۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئے، جہاں پر انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی جس میں روشنی جل رہی تھی۔ رات کے اس پہر یہ روشنی ان کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ وہ تینوں تھکن سے نڈال جب اس جھونپڑی کے پاس گئے تو ان میں سے ایک نے کہا، بھائیو، بنا اجازت کے جھونپڑی کے اندر داخل ہونا اخلاقیات کے خلاف ہے۔ جھونپڑی کے اندر داخل ہونے کی بجائے تینوں دوست باہر ہی بیٹھ گئے اور اندھیرا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد انہیں دن کی روشنی کے آثار نظر آنے لگے اور اندھیرے کی وحشت کم ہونے لگی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اگلے دن کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ تینوں دوست جھونپڑی کے باہر وہیں لیٹے ہوئے تھے۔ اندھیرے کی وحشت سے تو انہیں آزادی مل گئی تھی، لیکن خوف کا سایہ ابھی بھی ان کے ذہنوں پہ منڈلا رہا تھا۔ اتنے میں جھونپڑی کے اندر سے ایک بزرگ باہر آئے۔ وہ نورانی چہرے والا بزرگ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہی نماز پڑھ کر آیا ہو۔
बुजुर्ग ने उनकी ये हालत देखकर उनसे शफकत से कहा, बेटा अंदर आ जाओ, बाहर क्यों लेटे हो। बुजुर्ग ने तीनों दोस्तों की खूब मेहमानवाजी की और जब उसे मालूम हुआ कि वो तीनों मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं तो बुजुर्ग ने उनसे कहा, बेटा मेरी बकरियों का रेवड़ इस जंगल में कहीं खो गया है। अगर तुम लोग उसे ढूंढ कर ला दोगे तो मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा इनाम दूंगा। खलीफा ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी आप परेशान ना हो, हम आपकी बकरियां ढूंढ कर जरूर लाएंगे। तीनों दोस्तों ने नाश्ता किया और जंगल में बकरियों की तलाश के लिए निकल खड़े हुए। जंगल में कई किस्म के खतरनाक जानवर भी थे, लेकिन इन बेचारे दोस्तों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो सारा दिन जंगल में बकरियों की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें बकरियां कहीं भी ना मिली। थक हार कर जब वो एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचे तो एकदम से उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, क्योंकि उसी दरख्त के नीचे बकरियों का रेवड़ मौजूद था। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन इस रेवड़ को लेकर बुजुर्ग की झोंपड़ी के पास पहुंच गए। बुजुर्ग अपने रेवड़ को देखकर तशक्कुर भरी नजरों से उन दोस्तों को देखने लगा और कहने लगा, बेटा अभी शाम का वक्त हो गया है, जंगल के खतरनाक जानवर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। तुम लोग मेरी बात मानो और आज की रात यहीं मेरी झोंपड़ी के अंदर ही गुजार लो। सुबह होते ही अपना इनाम लेकर यहाँ से चले जाना। तीनों दोस्तों ने बाहमी इत्तेफाक से आज की रात यहीं बुजुर्ग की झोंपड़ी में गुजारने का फैसला किया। जैसे ही अगले दिन का सूरज तलू हुआ, तीनों सफर पर रवाना होने के लिए तैयार हो गए। हमदान के दिल में एक सवाल खटक रहा था। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? आप इतने खतरनाक जंगल में अकेले कैसे रह रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा मुझे इस जंगल में रहते हुए 30 साल का अरसा गुजर गया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से खतरात का सामना किया है, इसलिए मैं इन सब का आदी हूँ। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी झोंपड़ी के अंदर गया और एक थैली लेकर आया। बुजुर्ग ने वो थैली खलीफा के हाथ में दे दी और कहने लगे, बेटा इस थैली के अंदर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खजाना है। इस थैली में हर बकरी के इवज 10 अशरफियां हैं। मुझे तुम बहुत भले मालूम होते हो, तुम इन अशरफियों को बराबर में तकसीम कर लेना। खलीफा ने जवाब दिया, बाबा जी आप हमें इतने से काम के लिए इतना बड़ा इनाम कैसे दे सकते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारी ईमानदारी का बदला है। अगर तुम ईमानदार ना होते तो इनाम की रकम को छोटा समझते हुए बकरियों को मंडी में ले जाकर भी बेच सकते थे, और मुझे लगता है इन पैसों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, और तुम लोगों की हालत से मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं उम्र के इस हिस्से में इतना बड़ा खजाना अपने पास रखकर क्या करूंगा? मजबूरन उन्होंने वो खजाना कबूल कर लिया और नए रास्ते पर चल पड़े। ये रास्ता किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि उन्हें वापस घर की तरफ लेकर जा रहा था। वो घर से जिस मकसद के लिए निकले थे, उनका मकसद पूरा हो चुका था। उनके पास जो खजाना था वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब उनके चेहरों से थकावट के आसार खत्म हो गए थे। खैर काफी देर तक वो यूं ही सफर पर चलते रहे। चलते चलते वो एक अजनबी बस्ती में जा पहुंचे। आधा दिन मुसलसल पैदल चलने की वजह से उन्हें भूख लग गई थी। उन्होंने एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाला। अब तीनों को जोरों की भूख लग चुकी थी। खलीफा ने थैली से एक अशरफी निकालकर हमदान की हथेली पर रखी और उसे कहने लगा, हमदान मेरे दोस्त जल्दी से बस्ती के अंदर जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। हमदान अशरफी लेकर बस्ती की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में वो एक रेस्तोरां पर पहुंच गया। हमदान मालिक से कहने लगा, मुझे अपने रेस्तोरां का सबसे उम्दा खाना दे दो। मालिक ने जब हमदान की बुरी हालत देखी तो उसे कहने लगा, अरे अजनबी तेरे पास इतना महंगा खाना खरीदने के पैसे भी हैं या ऐसे ही अमीर होने का ढोंग रचा रहे हो? हमदान ने जब उस मालिक को अशरफी दिखाई तो मालिक की आंखें फटी की फटी रह गई। मालिक ने चिल्लाकर अपने मुलाजिम से कहा, फौरन साहब के लिए खाना लेकर आओ। हमदान को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने अपना खाना वहीं पर खाया और अपने दोस्तों के लिए अलहदा से ले लिया। जब उसने दोस्तों के लिए खाना लिया तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने सोचा क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं और बाकी सारे खजाने का इकलौता मालिक बन जाऊं। एक तरफ उसे खजाने का लालच हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उसे वो पुराना वक्त याद आ गया कि कैसे उस पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तो उसके 2 सार लम्हे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते थे। फिर वो सोचने लगा कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दौलत तो आने जाने वाली चीज है, ऐसे जान मारने वाले दोस्त फिर कभी नहीं मिलेंगे।
उसने अपने दिल में आने वाले लालच को निकाल बाहर फेंका और खाना लेकर वहां से निकल पड़ा। दूसरी तरफ खलीफा और जैद जो खाने के इंतजार में बैठे थे, उनको भी लालच ने अपनी लपेट में ले लिया। वो भी एक दूसरे से कहने लगे, क्यों ना हमदान को रास्ते से हटाकर खजाना आपस में बांट लें, इस तरह से हमें खजाने का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अभी वो यही सोच रहे थे क्या अजान होने लगी। उनके दिल में भी अल्लाह का खौफ आ गया। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। उन्हें भी हमदान के साथ गुजरा वक्त याद आ गया कि हमदान हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहता था और उसे कहीं भी भेजना हो वो अकेला चला जाया करता था। इस वक्त भी वो हमारे लिए अकेला खाना लेने गया है और हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी लालच भी दोस्ती पर भारी ना पड़ सकी और दोस्ती जीत गई। इतने में हमदान खाना लेकर पहुंच गया। वो तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। हमदान ने उन दोनों दोस्तों के सामने खाना रखा और उनके पास ही बैठ गया। वो दोनों खाना खाने में मगन थे कि इतने में वहां पर दो चोर और आ गए। वो चोर उस रेस्तोरां से ही हमदान का पीछा कर रहे थे। उन्होंने हमदान के हाथ में कीमती अशरफी देखी थी और उन्होंने ख्याल किया कि हो सकता है इस शख्स के पास और भी अशरफियां होंगी, इसलिए वो सारा वक्त हमदान की नकलो हरकत पर नजर रखते रहे और उसका पीछा करते करते उसी दरख्त के नीचे जा पहुंचे। लेकिन वहां पर हमदान के अलावा उसके दो दोस्त और भी थे। चोरों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो दो चोर उन तीनों दोस्तों का मुकाबला न कर सके। हर बार की तरह इस बार भी तीनों दोस्तों ने मिलकर चोरों का मुकाबला किया और उन्हें मार भगाया और अपना खजाना लेकर वहां से फौरन निकल पड़े। चलते चलते तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि हमदान सोचने लगा, अगर मैं खाने में जहर मिला देता तो आज ये खजाना मेरा भी ना होता, क्योंकि वो चोर मुझे अकेले को देकर ये खजाना लूट चुके होते। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि जिस दास ने उसे लालच से बचा लिया। दूसरी तरफ खलीफा और जैद के दिलों में भी यही ख्याल था कि अगर हम हमदान को रास्ते से हटा देते तो जिस तरह हम भूख से नडाल थे, इन चोरों का कभी भी मुकाबला न कर पाते और खजाने से हाथ धो बैठते। शुक्र है खुदा ने हमें लालच में अंधा होने से बचा लिया। उन्हें अपने इस गुमान पर बहुत ज्यादा पशेमानी थी और वो भी खुदा का शुक्र अदा करने लगे। यूं ही सफर करते करते कुछ ही दिनों में वो वापस अपने गांव में पहुंच गए। गांव पहुंचकर वो सीधा उसी बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठे जहां पर वो अक्सर बैठा करते थे। उन्होंने खजाने की थैली दरमियान में रखी। खलीफा हमदान से कहने लगा, दोस्त ये खजाना तुम बांटोगे। लेकिन हमदान ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर एतबार है, ये तुम ही बांटो, या जैद को कहो वो बांट दे। जैद ने भी मना कर दिया और दूसरे दोस्तों से बांटने का इसरार किया। उन तीनों दोस्तों के दिल में अब कोई लालच नहीं था और तीनों एक दूसरे पर बहुत खुश थे। खैर, फिर खलीफा कहने लगा, बांटने का काम हमेशा जैद करता आया है। जैद जब खाना पकाता था तो ये खुद ही हम तीनों में खाना तकसीम करता था, इसलिए आज खजाना भी यही तकसीम करेगा। वो तीनों इस बात पर मुत्फिक हो गए और जैद ने सभी में बराबर बराबर अशरफियां तकसीम की। तीनों ने अपना अपना खजाना लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। इस खजाने से ना सिर्फ उन्होंने अपने घर के हालात बदले, बल्कि आसपास जितने भी गरीब लोगों के घर मौजूद थे उनकी भी मदद की। बसरा जो कहत में मुब्तला था, इन तीनों दोस्तों की बदौलत खुशहाल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इत्फाक में बहुत बड़ी बरकत है। अगर इंसान इत्फाक से काम ले तो ना सिर्फ अपने घर के हालात बदल सकता है, बल्कि बहुत सारे दूसरे लोगों की भी मदद कर सकता है। और इसी इत्फाक की बदौलत इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी आसानी से सामना कर सकता है। और इंसान को कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच इंसान को बादशाह से भिखारी बना देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।